ये स्टूडेंट्स, आज आपके एमएससी फाइनल बॉटनी के फर्स्ट पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जो सिलेबस है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसपीएसी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक सॉइल प्लांट एटमॉस्फेयर कंटिन्यूम। एसपीएसी क्या है? ये जो एसपीएसी है ये पूरा का पूरा रिलेट होता है जो हमने वाटर मूवमेंट ऑफ प्लांट विद इन द प्लांट पढ़ा है, उस पर ये पूरा टिका हुआ है। हम जानते हैं कि किस प्रकार जो सॉइल वाटर होता है, जैसे उसके हमने प्रकार देखे थे। ग्रेविटेशनल वाटर है, कैपिलरी वाटर है, या केमिकल बॉन्डेड वाटर है। तो जो वाटर है वह सॉइल पार्टिकल्स के से होता हुआ और जो रूट हेयर्स हैं वहाँ तक पहुँचता है बाय द डिफरेंसेस इन द वाटर पोटेंशियल। और उसके बाद जब रूट हेयर्स में पहुंच जाता है तो रूट हेयर्स में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डिफरेंसेस इन वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वह जाता है। रूट हेयर से यह जो रूट है रूट के जाइलम तक पहुंचता है, और रूट के जाइलम से यह स्टेम और लीव के जाइलम से होता हुआ और ऊपर स्टोमेटा की सहायता से बाहर वेपर फेज में निकल जाता है। वेपर फेज में जब निकलता है तो कन्वेक्शन के द्वारा पानी लगातार निकलता रहता है। तो इस प्रकार जो है वाटर सॉइल से होता हुआ, सॉइल से जो वाटर है वह प्लांट की जड़ों से, रूट से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ लीफ में अल्टीमेटली बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। तो ये जो परिघटना है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स टू द प्लांट एंड टू द एटमॉस्फेयर, so this is all made a continuum that is to be known as the soil plant atmosphere continuum, SPSC. So the movement of water from the soil through the plant to the atmosphere, that is the SPSC we are going to discuss today. The movement of water from the soil through the plant, through the whole plant body. It starts from the root hairs to the root system, and from root system to the uh, shoot system, that is the stem, and ultimately in the leaf, and from the leaf and the stomata, and through the stomata it goes to the atmosphere in the vapor phase. So the movement of water from the soil through the plant to the atmosphere involves different mechanisms of transport. There are three different mechanisms of transport. First, that is the water moves by bulk flow in the soil and the xylem in response to a pressure gradient. We know very well that the water potential, uh, there are two components of water potential, the pressure potential and the osmotic potential. Okay, so the difference in response to the pressure gradient, the water moves in the soil and the xylem by bulk flow water. Last time we discussed in the last video. So water moves by bulk flow in the soil and the xylem in response to a pressure gradient. So this is one, that is the mechanism, that is bulk flow of water. Second thing is that when liquid water is transported across membranes means from the one cell to the another cell, the driving force is the water potential difference. We just discussed that the differences in the water potential is the main component, is the main factor that is responsible for the movement of water within the plant, or from the one cell to the another cell. So when liquid water is transported across membranes, from that means from one cell to the another cell, the driving force is the water potential difference across the membrane. दो कोशिकाओं के मध्य जो जल विभव का अंतर होगा वह एक बल की तरह व्यवहार करता है, जो कि पानी को जो है एक झिल्ली से दूसरी मेम्ब्रेन में पहुंचाता है, अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाता है. So such osmotic flow occur when cell absorb water and when roots transport water from the soil to the xylem. तो होता क्या है, जब एक कोशिका पानी को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, ठीक है, और जो रूट है वह भी
पानी को सॉइल से लाती है और जाइलम में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑस्मेटिक फ्लो बन जाता है। दैट मीन्स सॉइल से पानी रूट के जाइलम तक पहुंचेगा और उस जाइलम से कोशिकाएं जो है लगातार कोशिका में पानी चला जाएगा। तो पानी का जाना और ट्रांसपोर्ट होना, गमन होना, दोनों चीज़ें जो है वो किस पर निर्भर करेंगी? ऑस्मेटिक फ्लो पर, या फिर हम कहें कि परासरण की प्रक्रिया पर। And in the vapor phase, that is the final phase in the movement of water in the atmosphere, from the leaf to the atmosphere. So in the vapor phase, water moves primarily by diffusion until it reaches the outside air where convection become dominant. तो क्या होगा? विसरण जो प्रक्रिया है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ये जो पानी है वह आउटसाइड या हवा में चला जाएगा और वहाँ पर कन्वेक्शन को जो है वो डोमिनेंट होता है, तो पानी में हवा में जो है पानी उड़ जाता है। द की एलिमेंट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स, the key element in the transport of water from the soil to the leaf is a generation of negative pressure within the xylem due to capillary forces within the cell wall of transparent leaves. जो लगातार वाष्पोत्सर्जन करती रहने वाली जो पत्तियां हैं, लगातार वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो उन पत्तियों के जो कोशिका भित्ति है उनके अंदर एक कैपिलरी फोर्स, केशिकात्व बल का जो केशिकात्व बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि ये उत्पन्न होता है किसकी वजह से? इसमें क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वाटर का, कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम द सॉइल टू द लीव, वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होगा कि जाइलम के अंदर जो ऋणात्मक दाब उत्पन्न हुआ है, द नेगेटिव प्रेशर जो उत्पन्न हो रहा है जाइलम के अंदर, और वह नेगेटिव प्रेशर किस लिए कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि जो लगातार वाष्पोत्सर्जन करने वाली जो पत्तियां हैं उनके अंदर, पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर एक केशिकात्व बल का बल उत्पन्न हो गया है, जिसकी वजह से जाइलम में एक नेगेटिव प्रेशर उत्पन्न हो जाता है और इस नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो पानी है वह सॉइल से पत्तियों तक पहुंचता है। एट द अदर एंड ऑफ द प्लांट एट द अदर एंड ऑफ द प्लांट अदर एंड ऑफ द प्लांट मतलब जो रूट वाला जो एंड है, ठीक है ना? अभी हम बात कर रहे थे शूट वाले एंड की, जो यानी कि लीफ की, यहाँ पर हम बात करेंगे रूट की। सॉइल वाटर इज ऑल्सो हेल्ड बाय कैपिलरी फोर्सेज। तो हमने बात की थी कि कैपिलरी फोर्सेज जो है उसमें उसके उसकी वजह से जो है सॉइल पार्टिकल्स के मध्य उत्पन्न के मध्य उपस्थित जो पानी है वह उनको पादपों को अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो पादप उसका उपभोग करते हैं। सो एट द अदर एंड ऑफ द प्लांट सॉइल वाटर इज ऑल्सो हेल्ड बाय कैपिलरी फोर्सेज। सो दिस रिजल्ट इन, तो अब आप ये देखो कि सॉइल वाटर में जहाँ से अल्टीमेटली पानी आ रहा है वो कैसे रुका हुआ है? केशिकात्व बल के कारण, यानी कि सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर वह केशिका जल के रूप में उपस्थित है। तो ये तो हो गया रूट वाला पार्ट। और ऊपर ही ऊपर जो लीव्स है, लीव्स से जहाँ से पानी निकल रहा है तो वह भी जो है किस कौन सा फोर्स है? कैपिलरी फोर्स। अभी हमने बात की, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैपिलरी फोर्स ट्रांसपायरिंग लीव्स, तो जो कि ऊपर ही ऊपर का भाग हो गया। नीचे नीचे का भाग क्या है? सॉइल वाटर, जो भी किस पर है? कैपिलरी फोर्सेस का। सो in the both hand there is a presence of force that is a capillary force. Okay, so this results in a tug of war on a rope of water by capillary forces at both ends. तो एक जो है टग ऑफ वॉर बन जाता है, यानी कि एक जगह से खींचा जा रहा है और दूसरी जगह से निकलता जा रहा है। तो एक रस्सी नुमा संरचना की हम जैसे बात करें कि एक एक स्टैंड बन गया है, वाटर स्टैंड बन गया है, जो कि किसकी वजह से? क्योंकि कैपिलरी फोर्सेज हैं एट बोथ एंड्स, जैसे हमने बात की ऊपर ट्रांसपेरेंट लीव्स का और यहाँ पर सॉइल वाटर का, तो दोनों जगह जो है यह एक कैपिलरी फोर्सेज की वजह से, दोनों सिरों पर कैपिलरी फोर्सेज की वजह से एक वाटर स्टैंड बन जाता है और यह वाटर स्टैंड जो है एक टग ऑफ वार के तरह एक रिजल्ट में निकलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो कैपिलरी फोर्सेज है इनकी वजह से एक टग ऑफ वार हो जाता है ऑन ए रोप ऑफ वाटर
दैट मीन्स एक वाटर का एक स्टैंड बन जाता है, लगातार जो है एक स्टैंड बनता रहता है। एज ए लीफ लॉसेस वाटर ड्यू टू ट्रांसपरेशन, वाटर मूव्स अप द प्लांट। इसका मतलब क्या है कि एक टग ऑफ वार या रोप ऑफ वाटर जो है वाटर स्टैंड कैसे बन रहा है, कि क्या होगा कि जो लीफ है, पर पर्ण जो है पत्ती से लगातार वाष्पोर्जन प्रक्रिया के द्वारा जल का ह्रास हो रहा है, जल की हानि हो रही है। सो वाटर मूव्स अप द प्लांट, वाटर जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा पादप में, एंड आउट ऑफ द सॉइल, ड्रिवन बाय फिजिकल फोर्सेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मेटाबॉलिक पंप। तो प्लांट में जो है वाटर मूव करेगा, और सॉइल से जो है बाहर आएगा, वो किसकी वजह से, एक फिजिकल फोर्स। वो फिजिकल फोर्स कौन सा है, जो कैपिलरी फोर्सेज हैं दोनों एंड पर प्लांट के, उनकी वजह से। तो इसमें कोई भी इसी प्रकार का मेटाबॉलिक पंप जो है इसमें शामिल नहीं होता है। द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इज अल्टीमेटली सप्लाइड बाय द सन। तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी, वो आएगी सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के द्वारा। तो वो जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो एनर्जी होगी, वह इस वाटर को, मूवमेंट को जो है सपोर्ट करती है। द होल मैकेनिज्म वाटर ट्रांसपोर्ट इज एनर्जेटिकली एफिशिएंट। सो हम कह रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का मेटाबॉलिक पंप का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और सन के द्वारा जो प्राप्त, सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसमें, उसकी वजह से जो है अल्टीमेटली वाटर का मूवमेंट होता है। तो हम ये कह सकेंगे कि जल का जो गमन है पादप में, वह ऊर्जा के स्तर पर बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है, यानी कि सक्षम होता है, यानी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ as many as 400 molecules of water are being transported for every CO2 molecule being taken up in exchange। हम जानते हैं कि रंध्रों के द्वारा जो है ना सिर्फ वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया संपन्न की जाती है, बल्कि गैसीय विनिमय का कार्य भी होता है। तो गैसीय विनिमय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना होता है। तो इसमें हम ये, इस एनर्जेटिकली एफिशिएंट जो परिघटना है, इसको हम इस तरीके से व्याख्या कर सकते हैं इसकी, कि प्रत्येक जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु है, जब वो लिया जाता है, उसमें उस एक्सचेंज में 400 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में रंध्र खुले हुए हैं, तो जब तो पानी का बाहर निकल रहा है, उसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आती है। सो प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पर लगभग 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। So finally, there are two important factors which play important role in up movement of water are, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो लो रेजिस्टिविटी जाइलम फ्लो पाथ ड्यू टू कैविटेशन। तो इसमें क्या है कि जब पानी का स्टैंड बन जाता है, जब हमने बात की कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, और वी कैन से दैट इज अ रोप ऑफ वाटर is to be formed due to the forces at both ends of the plant, the forces, that is the capillary forces. So we have discussed about the tug of war in the last screen. So द टग ऑफ वार और द वाटर स्ट्रैंड जो है वो लगातार बन भी जाता है, तो उसमें पानी के जो बुलबुले होते हैं, वो गैस बबल्स, जो उनकी वजह से एक लगातार बनने वाला कंटिन्यूस वाटर स्ट्रैंड कैन बी ब्रेक्ड। ओके, सो बट ये जो है, इसकी वजह से इसका वाटर मूवमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई नहीं टूटता है। तो इसकी वजह क्या है, कैविटेशन प्रक्रिया की वजह से जो जाइलम है उसमें जो है गैस बबल्स जो है अगर बनते भी हैं तो वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि जाइलम की जो भित्ति होते हैं वो पोरस होती हैं, ठीक है, उनमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गैस बबल्स दूर हो जाते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट द हाई सरफेस एरिया रूट सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। हम जानते हैं कि जड़ें जो हैं उनमें प्राथमिक जड़ होती है, फिर द्वितीयक जड़ से तृतीयक जड़, उनकी जड़ों की शाखाएं होती हैं, तो वो अच्छी तरह से, वो पूरी तरीके से फैली हुई होती हैं। तो जब पानी में फैली हुई, सॉरी, सॉइल में फैली हुई रहती हैं, तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा मूल तंत्र उसका स्ट्रांग होगा, तो वो ज़्यादा ही अपने जो है पानी को नीचे से खींच पाएगी। उसकी वजह क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, उतने ज़्यादा ही रूट हेयर्स होंगे, और वो रूट हेयर जो है पानी को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। So these are the two important factors that support or contribute the transportation of water energetically efficient and without any hurdles, and without the breaking of water strand from the root to the leaves. So
these two important factors. That one is the low resistivity xylem flow, that is contributed by the cavitation process, and second thing is the high surface area root system for extracting water from the soil. So high surface area root system होगा तो उसमें वो अपने को ज़्यादा सरफेस मिल पाएगी और ज़्यादा रूट हेयर्स जो है बाहर काम कर पाएंगे. So this is all about the SPAC, soil plant atmosphere continuum, and the water transportation within the plant, the whole mechanism and the whole process we could discussed at in the last video. In the next section, we will study about the water movement within the cells.